ایک ایسا ظالم بادشاہ جس کو خواب میں ایک ایسی چیز دکھی جس کی وجہ سے وہ اپنی قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروانے لگا۔ اس نے خواب میں ایسا کیا دیکھا اور وہ ظالم بادشاہ کون تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سال 3150 BC ایجپٹ میں ایک بادشاہ تھا جو لوگوں پر ظلم کرتا تھا اور خود کو خدا کہلواتا تھا۔ یہ غرور کے نشے میں دھت تھا۔ اس انسان کا نام مصعب بن ولید تھا، جسے آج ہم فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور وہ بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا تھا۔ فرعون کی حکومت کو کئی سال گزرتے گئے اور اس کا ظلم بھی بڑھتا گیا، لیکن ایک دن اس نے لوگوں کو باتیں کرتے سنا کہ اسرائیل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو کہ فرعون کی حکومت گرا دے گا۔ فرعون کو لگا کہ لوگوں نے کوئی خواب دیکھ لیا ہے یا پھر یہ ان کی کتابوں کی کوئی پریڈکشن ہے، لیکن ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ یروشلم سے ایک آگ آتی ہے اور وہ مصر کے سارے گھروں کو جلا دیتی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ فرعون ڈرا ہوا نیند سے اٹھا اور اس نے اپنے سارے جادوگر اور پریسٹس کو جمع کیا اور انہیں اس خواب کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور ایجپشنز اس کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ فرعون کے اس حکم کے بعد سے بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا تھا۔ لیکن ایک دن اکنامکس ایکسپرٹ نے فرعون کو کہا کہ بنی اسرائیل کے بوڑھے مرتے جا رہے ہیں اور اگر کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اسے ہم مار دیتے ہیں، اس طرح تو کوئی مرد بھی باقی نہیں بچے گا جسے ہم غلام بنا سکے اور کام لے سکیں۔ ہمیں کوئی پالیسی بنانی ہوگی جس میں ایک سال اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو اسے مار دیا جائے اور دوسرے سال اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ فرعون نے اس بات کو سمجھا اور اس کے بعد اسی طرح ہونے لگا۔ جس سال بچوں کو زندہ چھوڑا جانا تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ ہوئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جنم دیا۔ لیکن اس کے اگلے سال جب بچوں کو قتل کیا جانا تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ڈر ستانے لگا کہ اب میرے بچے کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن تبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام فرمایا، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، جس کے معنی یہ ہیں، اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کو مانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل کے کنارے جا کر پانی میں چھوڑ دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں دریا میں چھوڑا تو اللہ نے ٹوکری کو حکم دیا اور یہ تیرتی ہوئی فرعون کے محل کے کنارے دریا پر آ گئی۔ وہاں سے محل کے نوکروں نے اس ٹوکری کو اٹھایا اور فرعون کی بیوی کے پاس لے گئے۔ فرعون کی بیوی ایک نیک اور اچھے دل کی عورت تھی۔ جیسے ہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ نے اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی۔ فرعون کی بیوی کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کہ اسے بیٹا ہو۔ اس نے فرعون سے اسے اپنے پاس رکھنے کا کہا اور فرعون نے اسے اجازت دے دی، کیونکہ فرعون اپنی بیوی کو دیکھ کر حیران تھا، جس طرح وہ اس بچے کو سینے سے لگا رہی تھی، پیار کر رہی تھی۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کر دکھا دیا کہ وہی سچا رب ہے، اور یہاں تک کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال پیدا کیا جس سال بچوں کو مار دیا جاتا تھا۔ یہ سب اس رب کی قدرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طاقت اور دین کا علم عطا کیا تھا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی کو کچھ مصر کے لوگ پٹ رہے تھے۔ اس اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے اور تب ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو غلطی سے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ وہ بہت زیادہ دکھی ہوئے اور انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے بھی انہیں معاف کر دیا،
क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का उस इंसान को कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था, वो तो बस उस मजलूम की मदद करना चाहते थे। अगले ही दिन फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वही इंसान जिसे कल लोग मार रहे थे, आज फिर वो एक लड़ाई में पड़ा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास गए और उसे कहा कि तुम मुझे झगड़ालू लगते हो, तुम्हारा हर रोज किसी न किसी से कोई झगड़ा रहता है। उस इंसान को लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम उसे भी मार देंगे जैसे कल उस मिस्री को मारा था। तो उस इस्राएली ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या तुम मुझे भी मारोगे जैसे तुमने कल उस मिस्री को मारा था। जैसे ही उसने ये कहा, उसके साथ जो मिस्र के लोग लड़ रहे थे उन्होंने ये सुन लिया और जाकर अथॉरिटीज को खबर दे दी कि मूसा ने एक मिस्री का कत्ल कर दिया है। इसके फौरन बाद एक इंसान ने मूसा अलैहिस्सलाम को आकर बताया कि चीफ्स ने तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलाया है और तुम्हें कत्ल करने का मशवरा किया है। मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि भाग जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जैसे ही ये पता चला, वो बग़ैर किसी तैयारी के मिस्र छोड़ के भाग गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास ना तो पहनने के लिए कपड़ा था और ना ही खाने के लिए कुछ था। वो गर्म रेत पर नंगे पैर चल रहे थे और उन्हें फ़िरौन के लोगों का खौफ था कि कहीं वो लोग हमें कत्ल ना कर दें। रेगिस्तान पार करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह पहुंचे जहां वो एक दरख्त के नीचे लेट गए। उन्हें बहुत ज्यादा भूख प्यास लगी थी और वो बहुत ज्यादा थक चुके थे। वही मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि दो औरतें बकरियों को पानी पिला रही हैं। उन औरतों को मर्द की जरूरत थी क्योंकि जिस चश्मे से पानी निकलता था उसके मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था जिसे 10 लोग मिलकर हटाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यास को छोड़कर उन औरतों की मदद की और उस पत्थर को अकेले ही हटा दिया क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने काफी ताकत बख्शी थी। उन औरतों ने उस चश्मे से अपने रीवड़ को पानी पिलाया और वापस घर चली गईं। घर जाकर उन औरतों ने अपने बूढ़े बाप को इस वाकये के बारे में बताया तो उनके बूढ़े बाप ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर आने की दावत दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दावत को कबूल किया। वहां उन्होंने उन औरतों के बाप को सब सच बता दिया कि वो मिस्र से क्यों भाग कर आए हैं। उस बूढ़े इंसान ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर में जगह दी। वो बूढ़ा मूसा अलैहिस्सलाम की उनकी बेटियों के लिए की गई मदद से खुश हुआ और उसने मूसा अलैहिस्सलाम को ऑफर दी कि वो उसकी बेटी के साथ शादी कर ले, लेकिन बाद में उसे 8 साल काम करना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम को ये सही लगा क्योंकि उसे इस जगह कोई जानता नहीं था और न ही उनके पास रहने के लिए कोई घर था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बेटी के साथ शादी कर ली। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल काम किया। फिर एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर मिस्र वापस जाने का फैसला किया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ और भाई से मिलना चाहते थे और वैसे भी उन्हें उस मिस्री को मारे अब 10 साल हो चुके थे, इसलिए उन्हें वापस जाने में कोई खतरा भी नजर नहीं आया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली को लेकर मिस्र निकल पड़े, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफर इनकी जिंदगी बदलने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम सफर करते हुए एक पहाड़ पर पहुंचे जिसका नाम था कोहितूर। वहां उन्हें दूर कहीं आग जलती हुई नजर आई। मूसा अलैहिस्सलाम जिस्म को गर्म रखने के लिए आग लेने गए। जैसे ही वो आग के पास पहुंचे तो उन्हें एक खूबसूरत आवाज सुनाई दी, ए मूसा, मैं अल्लाह हूँ, इस कायनात का रब। मूसा अलैहिस्सलाम ने घबराकर इधर उधर देखा। उसे फिर से आवाज सुनाई दी, ए मूसा, तेरे दाएं हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कांपते हुए जवाब दिया, ये मेरा असा है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ और जिससे मैं अपनी भेड़ों के लिए शाखें मारता हूँ और दूसरे काम करता हूँ। उसी आवाज ने उसे हुक्म दिया, अपनी लाठी फेंक दो। उन्होंने ऐसा ही किया और फौरन ही लाठी सांप बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम भागने के लिए मुड़े, लेकिन आवाज ने दोबारा उसे कहा, डरो नहीं और इसे पकड़ो, हम इसे इसकी पहली हालत में लौटा देंगे। सांप वापस अपनी लाठी में बदल गया। मूसा अलैहिस्सलाम का डर खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वो हक की गवाही दे रहे हैं। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना हाथ अपनी चादर में डाल दो। जब उन्होंने इसे बाहर निकाला तो हाथ में एक शानदार चमक थी। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम्हारे रब की तरफ से ये 2 निशानियां हैं। फिरौन और इसके सरदारों के पास जाओ क्योंकि वो बदकार गिरोह हैं और हद से गुजर चुके हैं। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिफाजत का यकीन दिलाया और इनके दिल को सुकून दिया। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम
एक साथ फिरौन के पास गए और इसे अपना पैगाम पहुंचाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह के दीन की दावत दी। फिरौन ने सोचा कि मूसा पागल है जो इसने मुझ जैसे इंसान के सामने बात करने की जुर्रत की। फिरौन ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो। फिरौन ने पूछा कि मैं इनको क्यों भेजूं? ये मेरे गुलाम हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये अल्लाह के बंदे हैं। फिरौन ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को हिरासत में ले लिया और इसने दुनिया के बेहतरीन जादूगरों को इकट्ठा किया और मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के दरमियान एक मुकाबला करने की तैयारियां शुरू कर दी। हर कोई इस अजीम मुकाबले को देखने के लिए बेताब था। इसके शुरू होने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम उठे तो बड़े हजूम में खामोशी छा गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से कहा, अफसोस है तुम पर, अगर तुमने अल्लाह पर इसके मोजज़ात को जादू कहकर और फिरौन के साथ दियानतदारी से झूठ बांधा, क्योंकि जो अल्लाह पर झूठ बोलता है वो बुरी तरह नाकाम होता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सच्चे दिल से बात की थी और जादूगरों को सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन वो पैसे और जहां वो जलाल के नशे में थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से कहा कि वो पहले अपना जादू दिखाएं। उन्होंने अपनी जादुई चीजें जमीन पर फेंक दी। इनकी लाठियों और रस्सियों ने सांपों की शक्ल इख्तियार कर ली। लोग ये देखकर हैरान हो गए। फिरौन और इसके साथियों ने जोर से तालियां बजाई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका। ये जोर से हिलने लगा और एक बहुत बड़ा सांप बन गया। ये देखकर लोग खड़े हो गए। फिरौन और इसके आदमी खामोश बैठे थे। एक एक करके मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े सांप ने तमाम सांपों को निगल लिया। मूसा अलैहिस्सलाम इसे उठाने के लिए झुके और वो इसके हाथ में लाठी बन गई। हजूम एक बड़ी लहर की तरह उठ खड़ा हुआ और जोशो खरोश से चीखता रहा। ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। मूसा अलैहिस्सलाम की कुदरत को देखकर जादूगरों ने अल्लाह को सजदा करते हुए ऐलान किया, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन गुस्से में था और उसने इल्जाम लगाया कि मूसा और जादूगर आपस में मिले हुए हैं। इसने मूसा और जादूगरों को धमकियां देना शुरू कर दी। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम चले गए और फिरौन अपने महल में वापस चला गया। फिरौन इन दोनों मुजज़ों का सामना करते हुए हैरान रह गया और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। फिर इस कहानी का क्लाइमैक्स आता है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर भाग रहे थे तो पीछे फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम भागते हुए समंदर के पास पहुंचे और आगे रास्ता खत्म हो चुका था। अब भागने के लिए रास्ता नहीं था और पीछे से फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ हमला करने आ रहा है। बनी इसराइल जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे वो कहने लगे, ऐ मूसा तूने हमें कहां फंसा दिया, अब हमारा क्या होगा? लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब रास्ता बनाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी लाठी जमीन पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। इसके बाद एक कमाल का मुजज़ा जाहिर हुआ। जब समंदर में रास्ता बना तो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ समंदर पार कर गए। लेकिन जैसे ही फिरौन अपनी फौज के साथ गुजरने लगा तो अल्लाह ने समंदर को हुक्म दिया और इसने फिरौन और इसकी फौज को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मैं फ़िरऔन की लाश को आने वाली नस्लों के लिए इबरत की निशानी बना दूंगा, और बेशक अल्लाह ताला ने बिल्कुल वैसा ही किया। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने फ़िरऔन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जाना। अगली वीडियो किस नबी के लिए होनी चाहिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।